God, today we're here to worship you, and we just lift up our hands and our hearts to heaven, and we just thank you for your presence, God. Come on, guys, wherever you are, I just want you to lift up your hands and just begin to worship the Lord. You know, place is never a problem. When your heart is in the right place with God, location doesn't matter, only position matters. And today we don't worship in a location, we worship from knowing who you are, knowing who we are, as we are the children of the living God. We are his bride, we are his lovers, we are the lovers of his presence. So let's just lift up our hands and let's begin to sing and let's begin to worship him. Oh, nothing else matters. Nothing else will do, God. हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. Sing यीशु मसीह. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. Sing it out. मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. You sing that. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. तेरा नाम
ऊंचा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे, सिर्फ तेरा नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Sing it out. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ, तेरा नाम, तेरा नाम। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा
goodness. You desire only health for us. God, we strongly believe. We know who you are. We know that you are a good Father. And God, we thank you for being an amazing Father to us, that you would never let anything come near us. God, thank you that we are protected under your shadow. Thank you that nothing will ever be able to touch us that is going to destroy us. God, we believe that we are protected. We are protected by your mercy, by your covering and your blood. So here we are, God, again in awe of who you are. We give it all to you, God. We worship you. We thank you for everything that you have done in our lives. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Good morning or good afternoon, wherever you are. और सुप्रभात या दिन का मैं शुभ समाचार लेकर आता हूँ आप जहाँ कहीं भी है. So good to have you today in our fellowship. और आज हमारी सभा में आप सभी को देख करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. This is, whenever we come together, we believe that Jesus is here as he promised. और जब भी हम एक साथ आते हैं तब हमें ये मालूम होता है कि जैसा यीशु ने वायदा किया था कि वह हमारे संग होगा तो वह हमारे साथ होता है. If you're together with somebody, or if you are just just listening to me wherever you are, just know that Jesus is there with you. और आप जहाँ कहीं भी हैं और मुझे सुन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं कि यीशु मसीह आज आपके साथ वहाँ मौजूद है. You are his child and he's watching over you. और आप उसकी संतान हैं और वह आपके ऊपर हमेशा नजर डाले रखता है. Just wanted to let you know that if you have received Jesus into your life, and if you know that your sins are forgiven, you are a child of God and you are very special to God. और ये मैं आपको बात याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है और आपके पाप क्षमा हो गए हैं तो आप ये जान ले कि आप उसके लिए बहुत खास हैं. His love for you is always the same. It's immense, and you cannot imagine how much he loves you. और उनका जो प्रेम है आपके लिए बहुत ज्यादा वो आपसे प्रेम करते हैं और उनका जो प्रेम है आपके लिए बहुत गहरा है कि आप उसकी सोच भी नहीं बना सकते. Also, if you think that, oh, there is nobody cares for you, there is no one who is around you to listen to you, just know that Jesus is there to listen to you, to listen to your prayers, to love you, and to give you a hug, and also be with you as he has promised. और अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई सुनता नहीं है या आपकी कोई देखभाल नहीं करता, आप याद रखें कि यीशु मसीह हमेशा आपकी देखभाल करता है. वो आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनता है और आपको औरों से भी ज्यादा गले लगाकर अत्यंत प्रेम करता है. Last week I was studying the book of Ephesians. पिछले सप्ताह की बात है कि मैं इफिसियों की किताब पढ़ रहा था. And I was relating it to our situation so much. और हमारी जो रोजमर्रा की जो परिस्थितियां हैं मैं उनसे इस बात को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था. Let's have a look at that. Let's read verse 1, 2 and 3, Ephesians chapter 1. और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ में पढ़ें. आपके पास बाइबल है तो आप इफिसियों उसका पहला अध्याय निकाल ले, पहले वचन से तीसरे वचन तक. And I would like Munmun to read it for us. और मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगी. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में रहते हैं. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले. हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. As I started reading this book, I realized that it was written by Paul to a church
that he had never visited. और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने यह महसूस किया कि पौलुस ने ये चिट्ठी उन लोगों को लिखी है जिस जगह पे या जिन लोगों से वह आज तक कभी मिला नहीं है। The people in Ephesus have never seen Paul anytime physically. और शारीरिक रूप से इफिसुस में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने कभी भी पौलुस को आमने सामने देखा नहीं है। But he heard about the church in Ephesus, and then he wrote to Ephesus. He wrote to the people of Ephesus. लेकिन उस कलीसिया के बारे में वह जानते हैं कि इफिसुस में जो लोग रहते हैं उस कलीसिया में वह पौलुस ने उनको ये चिट्ठी लिखी। And I was thinking it could be the most appropriate letter for us because we have never seen Paul face to face. और मैंने ये सोचा कि ये जो चिट्ठी है उसी प्रकार एकदम ठीक बैठती है हमारे लिए भी, क्योंकि हमने भी पौलुस को कभी भी आमने सामने नहीं देखा है। We have never heard Paul in his physical voice. और कभी भी शारीरिक तौर से हमने पौलुस की आवाज अपने कानों से खुद नहीं सुनी। So it could be something that Paul is writing a people or church like our church or our setup. और इसीलिए मैं ये महसूस करता हूँ, मैंने ये महसूस किया कि इफिसुस भी कि पौलुस भी उसी तरीके से उन लोगों को लिख रहा था जिसको उसने कभी देखा नहीं था, या हमारे जैसे ही ऐसे किसी लोगों से वह ये बात कर रहा था। And the people of Ephesus were Gentiles, those who have never been Jews, and those who are not Jews, and they were into faith of different religion. और जो इफिसुस के लोग थे वह अन्य जाति थे, वह यहूदी नहीं थे, और वह ऐसे लोग थे जो अलग-अलग धर्म से आए थे। They were worshipping idols, they were worshipping various gods and goddesses in various places. और वह अलग-अलग जगह पे अलग-अलग भगवानों की वह पूजा करते थे, अलग-अलग मूर्ति पूजाएं करते थे। And they have come to faith they have come to faith in Jesus Christ, and they have been saved by putting their trust upon Jesus. और वह यीशु मसीह में विश्वास करके वह बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, उसको अपने जीवन में स्वीकार करके और उस पर भरोसा करके। So I could relate it to our situation. Most of you, those who are listening to me, you have come from other faith, and you have put your trust in Jesus Christ. और मैं इसी तरीके से जो ये चिट्ठी है इसको हमारी जिंदगी से जोड़ पा रहा था, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो अलग-अलग पृष्ठभूमि से या ऐसे धर्म से आए होंगे जो अलग धर्म हैं। So I was thinking, I could just imagine this letter was written to me, to my church, to our setup, and it is very appropriate for us. और फिर मैं यह सोच रहा था कि ये जो चिट्ठी है जो पौलुस ने लिखी है, ये हमारे लिए एकदम सही चिट्ठी हमें लिखी है, हमारे लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के लिए। So let's imagine Paul is somewhere else. He had never seen these people, and he heard about this people group that they have come to Christ and they have put their trust in Jesus, and then he is writing this letter to them. और उसके बाद अब आप ये सोचें कि पौलुस ने उन लोगों को जिसको कभी देखा नहीं है, उन समूह के उस समूह के बारे में याद किया और उन लोगों को यह चिट्ठी तब लिखी। So whenever you see someone the first time, you introduce yourself. You put your name, you said, this is my name and this is who I am. और इसीलिए जब आप किसी से पहली दफा मिलते हैं, जब आप पहली बार किसी से आप मिलते हैं, तो आप अपना परिचय जरूर देते हैं, कि आप अपना जरूर नाम बताते हैं और आप कौन है यह भी बताते हैं। So Paul is saying here that I am Paul, the apostle of Christ Jesus, by the will of God. The introduction he is giving about himself. और पौलुस फिर पहले आयत में यह अपना अभिवादन के साथ वह अपने खुद का परिचय दे रहा है कि परमेश्वर की इच्छा की ओर से मैं एक प्रेरित हूँ। If you know about Paul a little bit, he was one of the very influential person in that country. और अगर आपको ये बात याद है कि वह जिस शहर में था, पौलुस एक बहुत ही ज्यादा एक प्रभावशाली व्यक्ति था।
He was one of the very learned, very highly educated people of that time. और उस समय के वे बहुत बहुत बढ़िया सिखाया हुआ इंसान था और उसकी बुद्धि और ज्ञान बहुत ही ज्यादा थी. His family background was, it was very important. He come from a very influenced and affluent family. और वह उनके जो परिवार की पृष्ठभूमि थी, उनके जो परिवार था वह बहुत ही प्रभावशाली था और बहुत ही अच्छा ऊंचे पद के उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, उनके परिवार वाले वैसे ही रहे हैं. So family wise, he was come from a very good family, very good, extremely good education, very influenced in the society, and he is coming to the people that he doesn't know them at all, or they do not know him, and he's introducing himself to them. और वह उनका जो पृष्ठभूमि रहा है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत रहा है, बहुत ही प्रभावशाली, और उनकी जो शिक्षा भी रही है काफी बेहतरीन शिक्षा रही है. तो इसलिए अब वह ऐसे लोगों से बात कर रहा है, उन लोगों को चिट्ठी लिख रहा है जिनको उसने आज तक देखा नहीं है. To the people, those who value money, value education, value connection and relationship, he is introducing himself to them as he has been sent by Jesus Christ. और वह अपना परिचय उन लोगों के सामने दे रहा है कि यीशु की इच्छा के अनुसार कि वह प्रेरित है उन लोगों को जो एक अच्छे रिश्ते का मायने रखते हैं, वह जो पैसों के जो वह मायने रखते हैं, उन लोगों से अब वह बातचीत कर रहा है. So here I see that as when we introduce ourselves, if we have the same thing, if I had the same thing, probably I would say like we are so educated in Harvard or some other best university or DU, and I'm coming to yourself, you must listen to me. But he doesn't say that. He is saying, I am sent by Jesus Christ and my name is Paul. और जैसे अगर मैं होता या जैसे हम बात करते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि हम अपनी बढ़ाई देते हैं कि मैं इस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, या किसी एक अच्छे डीयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो तुम मुझे सुनो. लेकिन पौलुस ऐसा नहीं करता है. वह बस ये कहता है कि मेरा नाम पौलुस है और मैं यीशु की ओर से भेजा गया एक प्रेरित हूँ. He esteemed himself and he was taking pride in Jesus Christ there at that moment. And he thought that Jesus is everything, that I'm sold out to him. और उसके बाद पौलुस ने अपनी बढ़ाई नहीं करी. उसने सिर्फ कहा कि यीशु मसीह की ओर से मैं भेजा गया प्रेरित हूँ, और यीशु के नाम पर उसने अपना घमंड रखा. In a time that everybody in that world, they were thinking about Jesus, that he was a culprit. He was hanged on the cross, and being crucified is not a dignity. It was a shame for people. And Paul is now saying that I have been sent by that person, Jesus Christ, to you. और उस समय में जो लोग थे उनको यह मालूम था कि यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वह बहुत ही अनादर भरी हुई थी. उसको क्रूस पर लटकाया गया, तो ये बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन अनादर की बात है. लेकिन यहाँ पर जो पौलुस एकदम विपरीत कार्य कर रहा है, वह कह रहा है मैं उसी की ओर से भेजा गया एक प्रेरित हूँ. People, he is taking pride in Jesus Christ. और आप मेरे मित्रों यह सुने कि पौलुस यीशु मसीह के नाम में अपना घमंड रख रहा था. He was thinking himself so privileged that he's been sent by Jesus Christ, by the will of God. और वह इस बात से इतना खुश था, और वह इस बात का इतना आदर कर रहा था कि मैं यीशु मसीह के ओर से भेजा गया हूँ, उसी के इच्छा के अनुसार एक प्रेरित. I was thinking that if Paul can say that and think that about himself, how much more me and you must think about ourselves, that how privileged we are to known by Jesus Christ. और अगर पौलुस ये बात कह सकता है कि वह कितना सौभाग्यशाली है, तो क्यों ना मैं और आप इससे बेहतर कर सकते हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम यीशु मसीह हमें जानता है और
उसने हमें भेजा है। How much more we should take a pride in Jesus Christ, that we know him and the power of his resurrection. और हम लोग इस बात पे कितना गर्व कर सकते हैं, कितना घमंड कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, उस नाम को जानते हैं और उसके पुनरुत्थान पे हम लोग विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। It's very important. It's a privilege for us to know Jesus Christ and to know the God of over all gods, and he is the maker of everything. और ये बात कितनी आनंदमय है और हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम लोग उस नाम को जानते हैं जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, जो ऊंचे जो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठ। If I should take pride, I should take pride in Jesus Christ. और अगर हमें गर्व करना है किसी बात पर या किसी नाम पर, तो वह नाम केवल यीशु है। Here we see that Paul is saying that he is sent by Jesus Christ. और यहाँ पर पौलुस हमें यह बताता है कि वह यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया है। You know, as Paul was sent, I was thinking about our situation. और जब पौल इस बारे में बातचीत कर रहा है तो मैं अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच रहा था। Before Jesus went up to heaven, he called his disciples and said that go into all the world and make disciples of all nations. He sent them. और जब यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया, जब उसका स्वर्गारोहण हो रहा था, उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा कि जाओ हर जाति में चेला बनाओ। You and I are today's disciples of Jesus Christ. और मुझे और आपको यह कार्य मिला है कि हमें यीशु मसीह के लिए चेले बनाने हैं। If you're a disciple of Jesus Christ, this word is applicable to you, that Jesus says, go into all the world and make disciples of all nations. और अगर मैं और आप यीशु मसीह में है, तो यह जो चिट्ठी है या ये जो बातें पौलुस ने कही है, ये हम पे लागू करती है कि हम जाए और हर जातियों में चेला बनाएं। Apostles means sent. और जो प्रेरित का मतलब होता है कि परमेश्वर द्वारा भेजा गया एक समाचार प्रचारक। Sent means you represent the person who has sent you. So you are his representative. You speak for him. You stand for him. You be him. और भेजा गया का मतलब ये है कि जिसने आपको भेजा है, आप उसे लोगों के सामने प्रकट करते हैं। आप वह बन जाते हैं, आप ये दिखाते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, मैं उसकी ओर से आया हूं, मैं ही वही हूं। So you and I, as Paul, represent Jesus Christ to the people. और इसी प्रकार से मैं और आप यीशु मसीह, मैं और आप और पौलुस इसी प्रकार से हम लोग यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने। You are a representative of Jesus. I am a representative of Jesus. और मैं और आप यीशु मसीह को दुनिया के सामने दिखाते हैं, हम दुनिया के सामने यीशु को प्रकट करते हैं। So who has sent you? Jesus. You should speak, and you and I must speak his message, his word, and we must represent him as he is. और जैसा मुझे और आपको भेजा गया है, हम उसी प्रकार से हम यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व बनते हैं, हम लोगों को यीशु मसीह को दिखाते हैं। So we are no ordinary people. तो हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। So you and I, those who represent Jesus, we are no ordinary, but we are ambassador. That's what Paul said to the church. और वैसे ही हम और आप जो यीशु मसीह के नाम में भेजे गए हैं, जो हम दुनिया को यीशु को प्रकट करते हैं, हम ऐसे ही कोई आम इंसान नहीं है या साधारण लोग नहीं हैं। So we are here to represent Jesus Christ as he is. और हम लोग यीशु मसीह को दुनिया को वह जैसा है वैसा ही दिखाने आए हैं। He has the message of love and message of peace. और उसके पास एक वह एक प्रेम और शांति का संदेश है। He wants people to know him and have a good news in him.
और वह चाहता है कि यीशु वह चाहता है कि लोग उसे जाने और यह जाने कि उसमें एक शुभ संदेश है। What is good news? Good news is something when people hear, they become happy in the time of distress, in the time of pain. They find relief and they find a way. और शुभ संदेश का मतलब क्या है कि जब परिस्थितियों में या बुरी परेशानियों के समय हम लोग कुछ एक समाचार सुनते हैं तो हमको खुशी महसूस होती है, हमको ठंडक पहुंचती है। उसी प्रकार से जो यीशु है वह एक शुभ संदेश है। Now, next, he says that to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. और फिर आगे पौलुस ये कहता है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। It says that to the saints in Ephesus, that means people, those who are saints. और उसके बाद वह कहता है कि इफिसुस में रहने वाले जो संत हैं उनके लिए, And the faithful in Christ Jesus. और जो यीशु मसीह में विश्वासी लोग हैं उनके लिए। If you read the book of Ephesus, you'll find that there are so many issues that Paul addresses there, and you know for very sure that there were people with challenges, people with problem, people with sin, people with fight and strife. और यह देखिए कि जबकि पौलुस जब इतने सारे लोगों से ये बात कर रहा है, उनको लिख रहा है, तो उनमें तमाम लोग ऐसे थे जो परेशानी में थे, जो पीड़ा में थे, जो दुख दर्द से होकर गुजर रहे थे। And here Paul is writing to them as saints and faithful in Jesus Christ. और पौलुस आज उनको ये कह रहा है कि तुम संत हो और मैं संत हो, जो मैं जिनको लिखता हूँ ये बातें, और जो मसीह यीशु में विश्वास रखते हैं, मैं उन लोगों को ये बातें लिखता हूँ। So I was thinking the word saint may not be because of what they do. और मैं ये सोच रहा था कि जो ये शब्द है संत, ये इसलिए उनको नहीं दिया गया है कि जो वह कार्य कर रहे हैं। Because if they were called saints, the same people they were still fighting. They had some still differences. They had they were, you can find that they had sin in that church. So you can say like, how can they be called saints? और मैं ये सोचता हूँ कि वह अगर उनको ये सच में अगर वह संत होते तो उनके बीच में वाद विवाद क्यों था, उनके कलीसिया में पाप क्यों था, उनके जीवन में या उनकी कलीसिया में इतना भेदभाव क्यों था कि उनको यह संत जो नाम है या जो शब्द है उनको दिया गया। So I thought the definition of saints in Jesus Christ and definitions about saints in the world is two different things, completely different. और उसके बाद मैंने यह जाना कि जो संत की परिभाषा है यीशु मसीह में और जो संत की परिभाषा है इस संसार में, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। How does the world call people saints? और संसार जो है या जो ये ब्रह्मांड है, यह संत को कैसे देखता है या कैसे जाना जाता है? How do you and I see in our country? आप और मैं हमारे देश में जो संत की परिभाषा है हम कैसे देखते हैं? As soon as I say the word saint, immediately you imagine something in your mind. और जैसे ही मैं ये शब्द लेता हूँ संत या अंग्रेजी में सेंट, तो आप जरूर आपके दिमाग में आपकी बात आई होगी, आपने कुछ सोचा होगा। You immediately thought of Haridwar, Banaras, Ayodhya, and in all the holy places, and you immediately imagined a man with a long beard, with for years he has not washed his hair, and he is clad with a saffron cloth or a white cloth from top to bottom. और हम लोग जब जैसे मैंने ये संत शब्द बोला तो आपके दिमाग में जरूर उन पवित्र स्थानों या स्थलों के बारे में आप याद कर पाए होंगे, जैसे हरिद्वार, बनारस, अयोध्या, और वहां पर रहने वाला एक बड़ा सा कोई पुरुष जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी होगी और बरसों से उसने बाल नहीं धोए होंगे अपने, और उन्हें कोई एक सफेद रंग का या कोई और रंग का उसने अंगोछा पहना होगा या कपड़ा पहना होगा। So how you look outside, the world defines you as saint
or not or ordinary people. और बाहरी रूप से जो संसार है वह बाहरी रूप से आपको संत बताता है, जो जैसा आपका पहनाव है, आपका पोशाक है, या आप कैसे दिखते हैं, या लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, उस चीज को संसार संत बताता है। But the Bible, according to the Bible, it says how you look inside, it defines you whether you are a saint or a sinner. लेकिन यहाँ पर बाइबल के अनुसार यह एकदम तर्क है, इस बात में बहुत फर्क है कि जब बोलते हैं, जब ये बोला जाता है कि संत, तो वह आपका अंदरूनी रूप देखते हैं कि आप अंदर से कैसे हैं, उसी प्रकार से आपको संत बताया जाता है। For outside, for the world, it says like if you put an appearance, a very saintly appearance, you are and it doesn't matter whatever you have inside, you have sin or garbage, it doesn't matter, but you are called a saint. But in the Bible it says you are supposed to be sinless inside, and your sins must be forgiven, and it doesn't matter however you look outside. और जो संसारिक जो परिभाषा है संत की, या संसार की, जो जैसे संसार इसको बताती है कि बाहर से जो आपका जो भी पोशाक है या पहनाव है, आप बाहर से कैसे दिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके हृदय में क्या है, आपके मन में कितना ही पाप हो, या आप कितना ही कूड़ा करकट भरा हो। जो संसार है संत को बाहरी रूप से बताती है, लेकिन जो बाइबल है वह अंदरूनी रूप को देख करके आपको बताती है कि आप संत हैं, कि आप पाप रहित हैं और पाप के बिना जीवन जी रहे हैं। The Bible says if your sins are forgiven by God through Jesus Christ, and if you have accepted Christ as your Lord and Savior, you are sinless and you are called saints. So you and I, those who have known Jesus as our Lord and Savior, and our sins are forgiven, we are called saints. You are a saint. I am a saint according to the Word of God. और संत का मतलब पर बाइबल के अनुसार यह है कि अगर आपके पाप धो दिए गए हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आप छुड़ाए गए हैं, आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो बाइबल के अनुसार आप और मैं एक संत हैं, क्योंकि हमारा हृदय साफ है, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, और हमारे सारे पापों की क्षमा हमको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दे चुका है। When I call you saint, it sounds funny, isn't it? और जब मैं आपको संत बुलाता हूँ तो ये सुनने में बहुत ही मजाकिया लगता होगा, या आपको सुनने में अटपटा लगता होगा। It's very difficult to accept it. Am I a saint? No, I do many mistakes in my life. और आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं संत हूँ? आप सोच रहे होंगे क्योंकि मैं तो अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की जीवन में मैं बहुत गलतियां करता हूँ, मुझसे कुछ छूट हो जाती है, भूल हो जाती है। But God calls you saint. So you would like to accept the word of the people in the world, or you would like what God says about you? तो इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह संत बुलाता है। और अब आप क्या संसारिक जो आपकी परिभाषा है संत की, आप उसको अपनाना चाहेंगे, या फिर जो प्रभु यीशु मसीह की जो परिभाषा है बाइबल के अनुसार, आप उसको अपनाना चाहेंगे? I just want you to know that you are a child of God and your sins are forgiven, and that's why you are a saint in Jesus Christ, not because of your work, but because of what Jesus has done on the cross of Calvary, that he has shed his blood for you. You and I are not called saints because of our work, but we are called saints because of what Jesus says, because of his work on the cross of Calvary. और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पापों को क्षमा मिल गई है, तो इसलिए हम लोगों को यीशु मसीह संत बुलाता है, बाहरी रूप से नहीं वरन अंदरूनी रूप से देख करके हमको संत बुलाता है। God acknowledges you as his child and the saint. और क्योंकि परमेश्वर की हम संतान हैं, हमको परमेश्वर अपना पुत्र और पुत्री मानता है, इसलिए हमको संत बताता है। You and I are privileged today in Jesus Christ. और यीशु मसीह में आज आप और मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। Because if we cannot do through good works, we cannot do as many good works, and you can be called saint.
और ये हमारे कामों के द्वारा नहीं है या हमारे कर्मों के द्वारा नहीं कि हम लोग संत बनाए जाए हैं। ये कभी भी हमारे कार्यों के द्वारा नहीं हो सकता कि हम लोग आज संत कहलाए जा रहे हैं। You and I cannot be saved because of our work, but we are saved because of Jesus Christ and his work on the cross of Calvary and because of his blood. और हमारे कर्मों के द्वारा नहीं वरन परमेश्वर यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा आज हम लोग बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमारे लिए बहाया था। So let's take pride in Jesus Christ, not in about whatever we have or who we are, but let's take pride that we know Jesus and his salvation, and we are called the children of the living God. तो आइए हम परमेश्वर के नाम पे हम लोग गर्व ले, हम यीशु मसीह के नाम पे घमंड ले, इसलिए नहीं कि हमारे कर्मों के द्वारा लेकिन उसके वजह से आज हम लोग उस पर हम उसके नाम पर घमंड करने पाए। And when you are a child of God, when I am a child of God, God has his eyes upon us, he cares for us, and he trusts us and entrusts responsibilities to us. और क्योंकि हम आज यीशु मसीह के पुत्र हैं, संतान हैं, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है और हमेशा अपनी आंखें हमारे ऊपर गड़ाए रखता है और वह पूरी कोशिश करता है, वह पूरा ये निश्चित करता है कि हम लोग सुरक्षित हैं और बचाए गए हैं। This morning I want to tell you that you are privileged, you are blessed, and we together that we know Jesus Christ. और आज सुबह मैं बता देना चाहता हूँ कि आप और मैं सौभाग्यशाली है कि हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। आज सुबह मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप और मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है कि हम यीशु मसीह के नाम को जानते हैं। Take pride in him and know that you are known by God, the maker of heavens and the earth. और आप उसके नाम पे गर्व करें और यह जाने कि यीशु मसीह जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है वह हमें जानता है, वह आपको और मुझे जानता है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful opportunity to know you. प्रभु, इस हम लोग अवसर का आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे को और गहराई से जानने पाए हैं प्रभु। Lord, and what an amazing God you are, that you did not call us saint because of our work, but because of your work. और प्रभु तू कितना ही अद्भुत और सुंदर परमेश्वर है कि तूने हमको हमारे कर्मों के द्वारा नहीं वरन अपने कर्मों के द्वारा हमको संत बुलाया है। And even though you are so far away, you are so close to us and you call us by our name. और प्रभु तू जबकि इतना दूर है तो भी हमारे इतने करीब है और तूने हमको हमारे नाम से पुकारा है। We are so thankful to you for your love, God. और प्रभु तेरे प्रेम के लिए मैं अत्यंत तेरे को धन्यवाद करता हूँ। Help us to represent you as you are, as the messenger of love, messenger of peace, messenger of good news. और प्रभु हमको मदद कर, जैसा तू है वैसा ही हम लोगों को या पूरे संसार को दिखाने पाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम और तेरी शांति के समाचार हम लोग प्रचारक बनने पाए। प्रभु जैसा तू है हम वैसा ही लोगों को तुझे दिखाने पाए। That our words and our lifetime will bring joy and happiness and long lasting changes for good among people. और प्रभु की हमारी जीवन शैली, हमारे कार्य लोगों के सामने प्रभु अलग दिखेंगे प्रभु और लोगों के जीवनों में इससे बदलाव आएगा। Those who are here watching me, Lord, I pray for every one of them that you will bless every one of them and shape them like Jesus Christ. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हमें मदद कर प्रभु कि हम तेरे ही आकार में हम सबको लाने पाए। Thank you for your word. प्रभु तेरे वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। बाइबल सिखाती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और लोग तुम्हारे गोद में दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। देने के विषय में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के राज्य में देना ऐसा है कि मानो आप एक बीज को बोते हो और जब कोई बीज बोता है तो उसकी फसल, उसकी कटनी निश्चित होती है। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं
तो आप इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ बोएं कि परमेश्वर आपको उसकी आशीष ज़रूर देगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो ये अवसर है आपके लिए कि आप स्क्रीन पर दी गई इन्फॉर्मेशन के द्वारा आप गुड न्यूज़ सेंटर चर्च के अकाउंट में अपने दान को, अपने दशमांश को, अपनी भेंटों को, अपने बीज को दे सकते हैं। और दिए गए नंबर पर अपनी भेंट को देने के बाद, अपने ऑफरिंग को देने के बाद आप उसके स्क्रीनशॉट को दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। विश्वास करें कि जब आप दे रहे हैं, परमेश्वर आपको उसकी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने ये मौका हमें आपके पास आने का दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जो वचन आपने हमें दिए हैं प्रभु, वो हमारी बेहतरी के लिए दिए हैं प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचनों में वो सामर्थ्य है कि हमारे जीवन को और हमारे जीवन की परिस्थितियों को वो बदल दें। अब प्रभु आपके वचनों को हम स्वीकार करते हैं प्रभु, जिन्हें हमने सुना है प्रभु, जिन्हें हमने सीखा है। और प्रभु हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं कि हमारी सहायता करें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं लेकिन उसके अनुसार करने वाले भी बने प्रभु। हम आपके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके शरीरों से बीमारियां यीशु मसीह के नाम में इसी समय से दूर हो जाएं। हर एक शरीर में बीमारियां और कमज़ोरियां यीशु मसीह के नाम में इसी समय से चली जाएं और दूर हो जाएं प्रभु। आपकी शांति, आपका आनंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों के जीवन में कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो कमी घटियों से होकर गुजर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में उनके हर एक ज़रूरत भरपूरी के साथ पूरी होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम आपको सारा आदर, मान और महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।